परमेश्वर नंदिका को बाकायद से आशीष करें और नंदिका कीबोर्ड सीख रहे हैं।
परमेश्वर उनको सहायता करे, मदद करे, ताकि अपने चर्च के अंदर कीबोर्ड प्लेयर की जरूरत है, परमेश्वर इस बच्ची के जरिए उस काम को पूरा कर ले सके। हालेलुया। अच्छा आवाज दिया है परमेश्वर ने उनको, प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो। गवाही दिए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष करने के लिए हमारे बीच में भाई सभी संत है, वो प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग आंखों को बंद करके प्रभु को स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे, सभी लोग। ಸ್ತುತಿಗಳು ಕರ್ತವೇ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವರೇ, ಅರ್ಮ್ಯಾನಂದ ஆரை வேலையிலே தேவனே கர்த்தாவே, நீர் எங்கள் அழைத்திருக்கிறீர் கர்த்தாவே, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே. கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கர்த்தாவே இந்த இடத்தில் கூடி வந்து தேவனே உம்மை நோக்கி பாடல்களை பாடி கர்த்தாவே உம்மை ஆராதிக்க தந்ததான இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் கூட கர்த்தாவே நீதாமே நோக்கத்திற்காக தேவனே நீ கொண்டு வந்திருக்கிற கர்த்தாவே, உங்கள் சித்தத்தின் பிரகாரமாக கர்த்தாவே எங்களை நீ கொடுபடியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல வந்து தேவனே கர்த்தாவே, கடந்த வாரங்களில் கர்த்தாவே நீதாமே பிள்ளைகளுக்கு செய்த அதிசயமான காரணங்களை கர்த்தாவே அவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து கர்த்தாவே உண்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக சாட்சிகள் சொன்னார்கள் தேவனே கர்த்தாவே. அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. நீதாமே தொடுபடியாக ஜெபிக்கிறேன். அந்த குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்கள் தேவனே. அந்த குடும்பத்தில் கர்த்தாவே என்ன பாடுகள் தொல்லைகள் இருந்தாலும் கர்த்தாவே நீதாமே தூதரை கொண்டு பாதுகாத்து கர்த்தாவே. இந்த இடத்தில் உண்மை வார்த்தைகள் பிரசங்கிக்கப்பட்டு கர்த்தாவே அதன் மூலமாக அவர்கள் கர்த்தாவே ரட்சிப்புகளாக வந்த தேவனே உண்மை நோக்கி கர்த்தாவை வேண்டிக் கொள்ளும்போது கர்த்தாவை நீர் யாவருக்கும் நீர் சகாயம் செய்கிறீர். அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. வந்து சாட்சி சொன்ன ஒவ்வொரு குடும்பங்களை நீர் ஆசீர்வதிங்கள் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து தேவனே இந்த சபையில் அதிகமான சாட்சிகள் எழுப்பி கிருபை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் தேவனே கர்த்தாவே. நீர் பூமிக்குரியவர் கர்த்தாவே. வானம் உம்முடையது, பூமி உம்முடையது தேவனே. எங்களுக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை தேவனே கர்த்தாவே. இதோ நான் திராட்சை செடியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவனே கர்த்தாவே. நீங்கள் என்னில் ஒட்டப்பட்டால் கர்த்தாவே நீங்கள் பலன் கொடுப்பேன் என்று சொன்ன தேவனே கர்த்தாவே. நாங்கள் நல்ல நீருள்ள இடங்களில் நடப்பட்டு கர்த்தாவே உன் காலத்தில் நல்ல கனிகளை தரக்கூடிய மரங்களாக கர்த்தாவே நாங்கள் வளர நீர் கிருபை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நல்ல கனிகளை கொடுக்க நீர் கர்த்தாவே நீர் தான் உங்கள் வார்த்தை மூலமாக எங்களை நீ தொடும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. தொடர்ந்து எங்களை ஆசிரியரை பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே. தேவர்கள் அனைத்தையும் தந்தையும் தேவனே இந்த இடத்துல கூட கர்த்தாவே ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்காக கர்த்தாவே இன்னும் கர்த்தாவே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அந்த ஆராதனைக்கும் இதற்கும் கர்த்தாவே என்னென்ன தேவைகள் எல்லாத்தையும் நீர் சந்திக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். நீ தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தும் கர்த்தாவே. எங்கள் பரிசுத்தமான ஆவியினால் எங்களை தொட்டு கர்த்தாவே பரிசுத்தப்படுத்தும். இன்னும் நீங்கள் பரிசுத்தமாக என்று சொன்ன தேவனே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் தேவனே. நாங்கள் கர்த்தாவே இந்த இடத்துல வார்த்தையை கேட்டு கர்த்தாவே நீர் வரும் மட்டுமாக கர்த்தாவே இந்த வார்த்தை நினைத்திருந்த தேவனே. நாங்கள் உமது வருகை மட்டுமாக செல்ல எங்களை நீர் தகுதிப்படுத்துமாறு கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறேன் தேவனே. ஆமென். Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उसके भवन में आए हैं। क्या आप लोग खुश है? क्या आप लोग खुश है? हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को ये गीत पता है, तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा आ मुझे थाम ले। हालेलुया, हालेलुया। तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है, खुदावन बता मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है, खुदावन बता मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, है शहीदो जहां आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं
में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन बता, मुझे नाम दे। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। रहम कर पाक कर, रूह की वर्षा से भर, है तेरा सिरा, मुझे नाम दे। करो मिलकर, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन बता, मुझे नाम दे। वल्वले क्या हुए, आशियाँ लुट गए, अशक थमते नहीं, आसरे छूट गए। वल्वले क्या हुए, आशियाँ लुट गए, अशक थमते नहीं, आसरे छूट गए। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, मुझे नाम दे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन बता, मुझे नाम दे। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, है शहे दो जहां, मुझे नाम दे। जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जाकी शिफा, तू मेरा गीत है। जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जाकी शिफा, तू मेरा गीत है। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, मुझे नाम दे। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, हाँ तू ही है खुदा, मुझे नाम दे।
की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, हे शहादो मुझे नाम दे। बारी बारी कदम उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं खुल गए सब करम। बारी बारी कदम उखड़े उखड़े सितम, अपने अपने नहीं खुल गए सब रंग कर पाक कर, रोगी बसा से भर, है तेरा आसरा, मुझे थाम ले। बल बने क्या हुए, आशियाँ लग गए, अशक थमते नहीं, आसरे छूट गए। बल बने क्या हुए, आशियाँ लग गए, अशक थमते नहीं, आसरे छूट गए। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, मुझे थाम ले। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है, खुदावन बता, मुझे थाम ले। जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जा की शिफा, तू मेरा गीत है। जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जा की शिफा, तू मेरा गीत है। तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तू ही है खुदा, मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है, खुदावन खुदा, मुझे थाम ले। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, हे शहादो मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले।
आइए हम लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। अनुवाद का पुस्तक व्यवस्था विवरण, उसमें 16वां अध्याय बैंक सुधा आगे आ जाइएगा, सुधा जैसी एक से 6 तक உபாகமம் 16வது அதிகாரம் 1 to 6 வசனங்கள்। आबिब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि आबिब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने न पाए। फसह को अपनी किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। ஆபீப் மாதத்தை கவனித்திருந்து அதில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க கடவாய்। ஆபீப் மாதத்திலே ராக்காலத்திலே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினாரே। கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவின் பலியாகிய ஆடு மாடுகள் பலியிடுவாயாக। நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளை நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் நினைக்கும்படி பஸ்கா பலியுடனே புளிப்புள்ள அப்பம் புசியாமல் சிறுமையின் அப்பமாகிய புளிப்பில்லாத அப்பங்களை 7 நாள் வரைக்கும் புசிக்க கடவாய்। நீ தீவிரமாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டபடியினால் இப்படி செய்ய வேண்டும்। 7 நாள் அளவும் உன் எல்லைகள் எங்கும் புளிப்புள்ள அப்பம் உன்னிடத்தில் காணப்படலாகாது। நீ முதல் நாள் சாயங்காலத்தில் இட்ட பலியின் மாம்சத்தில் ஏதாகிலும் ரா முழுவதும் விடிய காலம் வரைக்கும் வைக்க வேண்டாம்। உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கும் உன்னுடைய வாசல்களில் எதிலும் நீ பஸ்காவை அடிக்க வேண்டாம்। உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நேரமாகிய சாயங்காலத்திலே சூரியன் அஸ்தமிக்கிற போது பஸ்காவை அடித்து। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को जीवित बलि के रूप में तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। राजा खुदा बाप, आप बात कीजिए, हम लोग सुनेंगे। आपके नाम की महिमा के लिए आपके आगमन बहुत नजदीक है मेरे प्रभु। आपके आगमन के लिए आप हमें तैयार कीजिए, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आप चलाइए, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। बैठे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर ने
बीते हुए दिनों में हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानित संभाल कर उसके भवन में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद नबी कहता है कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोग जो वचन को पढ़े थे अभी महीने के अंदर, उसमें तेरे यहोवा परमेश्वर को बस्का का जो है पर्व को क्या करना, तो मनाना। और अभी महीने के अंदर रात के समय में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मिस्र देश से रवाना किए। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये ऐसा एक समय था, इसके पहले इनके जीवन में यदि आप देखेंगे, वहां ये लोग गुलामगिरी के अंदर थे। किसके अंदर थे? गुलामगिरी के अंदर। इनका मर्जी कुछ भी नहीं चलेगा। हालेलुया। इनका मर्जी कुछ भी नहीं चलेगा। जो मिस्री लोग चाहते हैं वही करना पड़ेगा। मिस्र देश के अंदर इन लोग गुलामगिरी के अंदर रहने के समय में इनका मर्जी कुछ भी नहीं चलता था, और मिस्री लोग जो चाहते थे वही बातों को इन लोगों से क्या करते थे, वो करवाते थे। नबी कहने के समय पर कहता है, अगर इजरायलियों के बीच में कोई जवान लड़की है, अगर कोई मिस्री देश के व्यक्ति अगर चाहता है उस लड़की के साथ में रहने के लिए, अगर वो आकर उसको पकड़ कर ले जाता, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत ही बेहाल के समय में समय को व्यतीत कर रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने अपना दास, अपना नबी को भेजकर उन लोगों को उन सारी गुलामगिरी के अंदर से छुटकारा देकर प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, बाहर लेकर आया। हालेलुया। वो जब उन लोगों के बीच में गए, मूसा जब उन लोगों के बीच में गए, तो परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, यदि वो लोग मुझे पूछे किसने तुझे भेजा, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो हूं सा हूं, जो परमेश्वर तुझे भेजा है करके क्या करो, तुम उनसे बातें करो। हालेलुया। परमेश्वर अपना नबी को पकड़कर उसके मुंह में वचन को डालकर, उसके हाथ में चिन्ह और चमत्कार को देकर गुलामगिरी के अंदर रहने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर अपना नबी को क्या किया, वहां मिस्रियों के बीच में भेजा है। उसी तरह से परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस अंतिम समय के अंदर आपके लिए, मेरे लिए जिस नबी को परमेश्वर ने भेजा, वो कोई इतना पढ़ा लिखा विद्वान नहीं है। कितना क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो? केवल और केवल 7वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ व्यक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर पकड़ के उनको परमेश्वर के वचन को देकर, प्रकाशन को देकर और उनके हाथ में चिन्ह और चमत्कार को देकर, प्रभु जो मिस्र, जो संस्थाएं हैं, जो दुनिया की सारी संप्रदाय है, इन सारी बातों से लोगों को छुड़ाने के लिए, अब अन्य जाति के लिए प्रभु परमेश्वर ने एक नबी को भेजा है। हालेलुया। और उस नबी का नाम क्या है? विलियम मरियम ब्रैनम। हालेलुया। और उनके जरिए प्रभु ने क्या किया, अंतिम समय के लिए, 7वां कलीसिया के युग के लिए, अपने दुल्हन के लिए प्रभु ने भोजन को क्या किया, दिया है। यहां शास्त्र ने कहता है, दूसरा वचन को पढ़ना, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने, जो स्थान यहोवा अपने निवास के लिए स्थान ठहराते हैं, जी, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और और गाय बैल
और गाय बैल फसह करके बलि करना। फसह करके क्या करना? बलि करना। उनको गुलामगिरी के अंदर से बाहर लेकर आने के बाद प्रभु एक स्थान को देता है। प्रभु क्या कर रहा है? बलि चढ़ाने के लिए एक स्थान को देते हैं और वो कहते हैं कि उसी स्थान पर तो क्या करना? बलि करना। फसह का पर्व को तो क्या करना? मनाना। परमेश्वर का नाम समझ लो। கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி देख लेना, यहोवा अपना नाम वहां प्रकट होने के लिए या प्रस्तावित होने के लिए தெரிந்து கொள்ளும் जो चुनकर लिया है, ஸ்தானத்தில் उस स्थान पर உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு तेरा यहोवा परमेश्वर को பஸ்காவின் பலியாகிய पर्व का फसह, ஆடு மாடுகளை பலியிடுவாயாக। फसह का जो पर्व जो है उस बैल बकरियों को तो क्या करना? बलि चढ़ाना। परमेश्वर अपने नाम के लिए एक स्थान को रखा है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए स्थान रखा है? उसके नाम के लिए, क्योंकि उसके नाम के अंदर सारी बातें हैं। उसके नाम के अंदर सारी बातें हैं। यीशु के नाम में सारा आशीष भरा हुआ है। यीशु के नाम में सभी प्रकार का बीमारी का दवाई उधर है। कौन सा नाम? प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। यहोवा अपना नाम जिस स्थान पर वहां प्रकट होगा, उस स्थान को उसने क्या किया? चुनकर लिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं बुलाए हुए लोग बहुत है। बुलाए हुए लोग बहुत है, लेकिन चुने गए लोग कितना है? बहुत कम है। हालेलुया। हम लोग बुलाए गए में से नहीं है, हम लोग चुने हुए में से हैं। हालेलुया। कब हमको चुना प्रभु? शास्त्र लेख में यदि आप गौर करेंगे, हमको प्रभु परमेश्वर ने इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही क्या किया? उसने हमें चुनकर लिया। आइए एफेसियों का किताब 1 से लेकर 4 तक पढ़ना। एफेसियों का किताब पहला अध्याय 1 से 4। एफेसियर 15 अधिकार नाम पौलुस की ओर से, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र हाँ, और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम, पवित्र और मसीह यीशु के नाम में जो विश्वास में है, उनके नाम जो इफिसुस में है, जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, उसने हमें मसीह में कौन सा स्थान पर रखा है? बोलता स्वर्गीय स्थान में। जी, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार के आत्मिक आशीषें। सब प्रकार का आशीष बोलने से इसमें कुछ छूटा है क्या? आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया। सब प्रकार का आशीष। इसके लिए शिष्यों को भेजने के समय पर एक ही शब्द में बोलकर भेजा, जाओ सभी बीमारी को चंगा करो। इसमें कौन सा बीमारी छूट गया बताओ मेरे को? सभी बीमारी बोलने से उसमें कुछ छूट गया? कुछ भी नहीं छूटा। सभी बीमारी को क्या करो? चंगा करो।
यहाँ सभी प्रकार के आशीषों से वो हमें भरकर रखा है। जी पढ़िए पीछे। जैसा उसने हमें हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें चुन लिया? किसमें चुन लिया? यीशु मसीह के अंदर हमें क्या कर लिया? चुन लिया। हाँ, कि हम उसके निकट प्रेम में, उसके निकट। आज मंडली किसमें बढ़ना चाहिए? प्रेम में। किसमें बढ़ना चाहिए? प्रेम में। जी, पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र भी होना जरूरी है और निर्दोष होना भी जरूरी है। पढ़िए। தேவனுடைய சித்தத்தினாலே जी, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் हाँ, எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விசுவாசிகளாய் இருக்கிற हाँ, பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது, ये किताब जो है ये एफेसियों का पत्री ऐसा बताता है कि पवित्र लोगों के लिए लिखा गया है। कौन है पवित्र लोग? कौन है पवित्र लोग? हम ही लोग पवित्र लोग हैं। हालेलुया। कौन पवित्र है? जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके विश्वास करता और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का वरदान को पाकर जो पवित्र जीवन जीता है वही पवित्र लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए लिखा गया है। நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் जी, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் हाँ, உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. हाँ, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் हाँ, பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். हाँ, அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே हाँ। ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் मसीह के अंदर स्वर्ग में आत्मिक प्रकार के सभी आशीषों से நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். हमें आशीष किया है। आशीष करने वाला नहीं है, हमें प्रभु ने क्या किया है? आशीष किया है। जी, தமக்கு முன்பாக हाँ, நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் हाँ, குற்றம் இல்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு हाँ, அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே हाँ। கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே. देख लेना, मसीह के सामने हम लोग कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए और प्रेम में बढ़ना चाहिए करके उसने हमें मसीह में चुन लिया है। बहुत लोग बोलते हैं मैंने प्रभु को चुन लिया। नहीं, नबी कहता है सफेद झूठ। आपने मसीह को चुना नहीं, मसीह ने आपको चुना है। ऐमान? किसने चुना है हमें? मसीह ने चुना है। कब चुना है? दुनिया के बुनियाद डालने से पहले चुना है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां अनुवाद का मतलब दो प्रकार का प्रमाण, व्यवस्था। व्यवस्था विवरण का मतलब दो प्रकार का क्या है? व्यवस्था है। और परमेश्वर के पास भी दो प्रकार का व्यवस्था है करके नबी कहते हैं। एक वचन के आधीन में रहकर मरना। किसके आधीन में? वचन के आधीन में रहकर मरना। और दूसरा वचन के आधीन में रहकर जीना। वचन के आधीन में नहीं आएंगे तो हम मरेंगे। वचन के आधीन में यदि हम नहीं आएंगे तो मरेंगे। यदि वचन के आधीन में आकर हम अपने आप को प्रभु के हवाले करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। मसीह का वचन कहता है हम यदि परमेश्वर का वचन के आधीन में नहीं आएंगे तो मर जाएंगे। और दूसरा विधि जो है वो है परमेश्वर के वचन के आधीन में आकर जिंदा रहना। व्यवस्था का मतलब दो प्रकार का जो है विधि है या व्यवस्था है। उसमें परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में उतर कर आए। एक जो है मरण है और दूसरा जो है जीवन है।
मोबाइल को साइलेंस में डाल दो, देख लेना, एक जो है मरण और दूसरा जो है जीवन है। परमेश्वर जो है जीवन के अंदर क्रिया करते हैं और शैतान जो है वो मरण के अंदर क्रिया करता है। परमेश्वर लोगों को जीवन के अंदर लेकर जाना चाहते हैं और शैतान जो है लोगों को मरण के अंदर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग ले जाना चाहता है, अनंत जीवन के अंदर लेकर जाना चाहता है, और शैतान जो है कोई भी व्यक्ति स्वर्ग ना जाए और कोई भी अनंत जीवन को ना पाए। आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रत्येक के आंखों के सामने दोनों भी चीजों को परमेश्वर ने रख दिया है। एक सीनै पर्वत के ऊपर व्यवस्था दिया गया और वो व्यवस्था जो है सारे मानव जाति को मरण के आदिन में लेकर आया, और दूसरी व्यवस्था जो कलवरी पर दिया गया है वो सारे मानव जाति को जीवन को लेकर आया। हालेलुया। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने जो व्यवस्था को दिए थे वो व्यवस्था मानव जाति को मरण के आदिन में लेकर आया, लेकिन कलवरी पर्वत पर जब परमेश्वर मरे वहां जो व्यवस्था हमें मिली वो व्यवस्था सारे मानव जाति को वो किधर लेकर गया? जीवन के अंदर लेकर गया। क्योंकि यीशु मसीह में सारा दंड और सारा दंड का किराया जो है वहां प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। इस दो प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य जो है इस व्यवस्था विवरण के अंदर दो प्रकार का प्रमाण को वो क्या करता है? पूरा करता है। प्रियो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर आज हमारे साथ में वाचा किया, वो कोई साधारण वाचा नहीं है, वो लहू के द्वारा अपने साथ में क्या किया? प्रभु ने वाचा बांधी है। आपका और प्रभु परमेश्वर का साधारण वाचा नहीं है, लहू संबंधित वाचा है। एदेन में जब हवा और आदम को रखा गया था वहां भी दो प्रकार का विधि उनको दिया गया था। व्यवस्था के अनुसार वहां परमेश्वर ने एक कंडीशन को रखा। क्या कंडीशन था? तू इसको खाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मरेगा या जिएगा? मर जाएगा। परमेश्वर ने बोला ये दोनों भी चीज तेरे सामने है, अगर तू इसे खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति आया उधर, क्या बोला उधर? अगर तुम इसको खाओगे तो मरोगे नहीं। हमेशा शैतान जो है परमेश्वर के शब्दों का विरोध में ही काम करता है। परमेश्वर कहते हैं इसे जब तुम खाओगे तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और शैतान कहता है यदि तुम इसे खाओगे तुम कभी भी ना मरोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हव्वा को शैतान की बातें बहुत अच्छी लगी। किसी बातें अच्छी लगी? हव्वा को शैतान की बातें बहुत अच्छी लगी। लेकिन आज आप और मैं जो प्रभु के सम्मुख में आकर बैठे हैं, ये पूरा पूरा परमेश्वर का शुद्ध अनुग्रह है। इसका अनुग्रह ये परमेश्वर का शुद्ध अनुग्रह है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सभी को परमेश्वर ने उस कलवरी के जरिए प्रभु ने क्या किया? उद्धार किया, हमें छुड़ा लिया, हमें अपना बना लिया। अपना बनाकर उसने ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसने बोला मैं तुम्हें बेसहारे के मानिंद नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुम्हें बेसहारे के मालिक नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। और उस समय में ये दुनिया मुझे क्या नहीं करेगी, नहीं देखेगी, लेकिन तुम लोग मुझे देखोगे। हालेलुया। ये दुनिया मुझे नहीं जानेगी, लेकिन तुम लोग मुझे क्या करोगे, जानोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस व्यवस्था को जब आदम और हव्वा ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा बिना शर्त का एक प्रमाण को जो है अब्राहम को दिए, और वो कहता है मैं तुझे और तेरे वंश को उद्धार किया हूं, छुड़ाया हूं। उसके बाद उसके वंश वो कलवरी के लिए क्या था, एक उदाहरण था, एक छाव था। जब अब्राहम अपना बेटा आइसक को वहां बलि चढ़ाने के लिए जो ले गया था, उसके विषय में नबी कहने के समय पर कहता है वो आने वाले दिन में कलवरी पर होने वाला उन सारी बातों के लिए वो क्या था, एक छावनी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर आज भी अपने लोगों से वो मुलाकात करता है। कहां करता है, उसकी वचन से करता है। कहां करता है, उसके नाम के आधीन में करता है। कहां वो मुलाकात करता है, उसके लहू के आधीन में क्या करता है, उनसे मुलाकात करता है। जुदा करार के संत लोग बैल बकरियों और पक्षियों के लहू के आधीन में थे, लेकिन आज आप और मैं कोई पक्षी या बैल बकरी के लहू के आधीन में नहीं है, हम परमेश्वर के लहू के आधीन में है। आमीन। किसके आधीन में है, किसका लहू है, इसके लिए नबी बात करने के टाइम कहता है यीशु ना तो यहूदी है, यीशु ना तो वो अन्य जाति का है, यीशु 100% वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, 100% कौन है, वो परमेश्वर है। जब उत्पत्ति का किताब 11वां अध्याय के अंदर सभी लोग एक ही भाषा और एक ही बोली के अंदर थे ना। उत्पत्ति 11 के अध्याय के अंदर सभी लोग कितना भाषा बोलते थे, एक ही भाषा, और बोली भी कैसा था, एक जैसा ही था। अभी भाषा एक रहेगा तो भी बोली क्या हो जाती है, चेंज हो जाता है। मुंबई वाला का मराठी अलग, वही पूना का व्यक्ति अगर मराठी बात करता है तो उनका मराठी अलग है। वही कोल्हापुर सोलापुर में चला जाओ, उधर का टोनिंग जो है अलग हो जाता है। लेकिन उस समय में भाषा भी एक थी और बोली भी कैसा थी, एक ही थी। इसलिए निम्रोद ने सोचा बस अभी इधर से टावर बनाऊंगा, मैं सीधा ही से किधर चला जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर उतर कर आए और वहां सारी भाषाओं को क्या कर दिए, क्या कर दिए, तितर बितर कर दिए। हालेलुया। एक ही भाषा था, उस एक ही भाषा को प्रभु ने क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। परमेश्वर के राज्य के अंदर सभी रंग के लोग होंगे, सभी भाषा के लोग होंगे। हमारा प्रभु सभी भाषा जानता है। ऐसा कोई भाषा है जो हमारा प्रभु जानता नहीं है। हालेलुया। मेरे से अगर वो बात करना चाहता है तो वो तमिल में बात कर सकता है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं, आपसे अगर वो बात करना चाहते हैं, वो मराठी में आपके साथ में क्या कर सकता है, बात कर सकते हैं। भाषा कोई मायने नहीं रखता। प्रभु परमेश्वर, उसका लहू, उसका वचन, उसका नाम मायने रखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां वे लोग जब प्रभु यीशु मसीह आए, उस समय में सदूसी और फरीसी के लोग बहुत ही भक्तिमान लोग थे, बहुत ही अच्छा हाथ पैर धोने वाले थे, बहुत ही साफ सुथरा रहने वाले लोग थे।
उनका सारा चीजों को प्रभु ने देखा। देखने के बाद एक शब्द बोला है। वो क्या शब्द था? आइए मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के अंदर हम आएंगे। Amen. 15वें अध्याय में 8 और 9 को पढ़ेंगे। இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகி இருக்கிறது. மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நன்றாய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார். ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कैसे आदर करते? कैसे आदर किए? होठों से, लेकिन इनका मन किधर था? ये लोग होठों से तो मेरे आदर करते हैं जी, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। पर उनका मन मुझसे कैसा है? दूर रहता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो भक्तिमान लोग बाहरी रूपी में दिखने में आए, उनके विषय में प्रभु वहां बात कर रहा है। ये लोग होठों से तो मेरी आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है? दूर है जी। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों के विधियों को धर्म उपदेश करके क्या करते हैं? सिखाते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां नबी क्या कहता है? देखिए, उसके दिनों में कुछ सच्चे लोगों के पास जो आराधना करने वाले थे, यीशु मसीह जो बात किए उसको याद कीजिएगा। व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं। उनके हृदय की गहराई के अंदर से सच्चा आराधना नहीं हुआ। उनके हृदय की गहराई से क्या नहीं हुआ? सच्चा आराधना नहीं हुआ। हम लोग जब भी प्रभु को आराधना करते हैं, हमारे तन मन दिलों से करते हैं। हालेलुया। हृदय की गहराई से हम हमारे प्रभु को आराधना करने वाले लोग हैं। हाँ जी। उसके बाद में मनुष्य का उपदेश को, विधियों को उपदेश करके क्या करते हैं? लोग सिखाते हैं और व्यर्थ मेरी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। अभी कहता है कि उनके संस्थाओं के रीति रिवाज को लेकर सच्चे दिल से बाई और भक्ति के साथ में वे लोग क्या करते थे? आराधना करते थे। फरीसी लोग वैसे करने लगे, लेकिन उस बात को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किए। कैन और आबेल, ये दोनों भी जन इस दुनिया के अंदर थे। ये दोनों भी उसी खुदा को क्या करने लगे? आराधना करने लगे। लेकिन एक का आराधना को प्रभु ने क्या किया? स्वीकार किया, और एक का आराधना को प्रभु ने क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। प्रियो, ये दोनों स्पिरिट आज भी चलता है। कैन का भी जनरेशन चल रहा है, मसीह का भी जनरेशन क्या कर रहा है? चल रहा है। जैसा कैन का बलिदान को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, आज उस स्थान के अंदर इस दुनिया की सारी संस्थाएं खड़ी है, लेकिन आबेल का स्थान में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज उस परमेश्वर का दुल्हन खड़ी है। इसका हर एक स्तुति धन्यवाद का भेंट को प्रभु अपने पास लेने के लिए वो तत्पर खड़े होते हैं। आबेल बहुत ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, और उतना ही भरोसा
और भक्ति जो है कैन के पास भी थे। आबेल के पास जो भरोसा, जो विश्वास, जो भक्ति थी, से कैन के अंदर भी था। दोनों भी वेदियों को बनाए और वे दोनों भी परमेश्वर से प्रेम किए और वो दोनों भी दशमांश को क्या किए, दिए। एक ने जैसा किया वैसे ही दोनों भी जन क्या किए, वहां करने लगे। लेकिन नबी कहता है आबेल विश्वास के द्वारा किया है, और विश्वास जो है वो प्रकटीकरण है। परमेश्वर का वचन प्रकट किया गया और उसको सफाई से समझाया गया। उसके बाद में वो आबेल उस प्रकाश के साथ, उस प्रकटीकरण के साथ, उस बलिदान को जब प्रभु के सम्मुख में लेकर आया, प्रभु ने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। आप परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज भी दुल्हन का झूठ जो है वो प्रकाश के साथ में चल रही है। प्रभु का यीशु मसीह को खुदा कर मानना ही, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही परमेश्वर का नाम है करके मानना ही बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी गुप्त बात है। इससे बढ़कर और क्या चीज चाहिए आपको? इस नाम के अंदर सारी बातों को प्रभु ने क्या किया, छुपा कर रखा है। या लिखता है परमेश्वर अपने खुद का वचन से कभी टलता नहीं है और अपना खुद का वचन का अर्थ परमेश्वर स्वयं बताते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर जब बताते हैं, परमेश्वर जब प्रकट करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, जीवन है। आमीन। उसके बाद में देखिए यहां कैन नाराज हो गया। कैन क्या हो गया, नाराज हो गया। इसकी वजह से अपना भाई को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो चेहरे में बदलावट आ गई। उसका चेहरा क्या हो गया, बदल गया। इसका चेहरा बदलने के बाद ये अपना भाई को क्या कर दिया, हत्या कर दी। लेकिन परमेश्वर का स्पिरिट से भरा हुआ तिपुन्नुस को जब लोगों ने फतरवा कर रहे थे, शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं तिपुन्नुस का भी चेहरा क्या हो गया था, बदल गया था। और उसका चेहरा देवदूत के मानिंद क्या हो गया था, प्रकाशमय हुआ। तिपुन्नुस जान लिया नहीं, अपना जान को प्रभु के सम्मुख में कुर्बान कर दिया। हालेलुया। चेहरा इसका भी बदल गया था। चेहरा कैन का भी क्या हो गया था, बदल गया था। लेकिन कैन अपना पिताजी का स्वभाव को क्या किया, उधर पूरा किया। उसका मां भक्तिमान थी, वो भक्ति का स्वभाव उसके अंदर था। लेकिन उसका बाप हत्यारा था, इसके लिए वो हत्या करने का स्वभाव भी उसके अंदर था। इसलिए वो अपना ही भाई को क्या कर दिया, घात कर दिया। आज आप और मैं जिस दिन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये समय हमारा चेहरा चेंज होने का समय नहीं है, हमारा पूरा शरीर चेंज होने का समय है। हालेलुया। जब प्रभु परमेश्वर ने उस रूपांतर पहाड़ पर जाकर पतरस, यूहन्ना, याकूब के सामने अपने आप को क्या किया, रूपांतर करके बताया। तुरंत पतरस बोला, आपके लिए एक तंबू, मूसा के लिए एक तंबू और एलिया के लिए एक तंबू, चलो डाल देते हैं। प्रभु स्वीकार किया क्या, उसको एक्सेप्ट किया प्रभु। तंबू केवल और केवल एक ही का नाम का होना चाहिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आमीन। शुरुआत में तंबू के अंदर आया जाया करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर आकर क्या किए, वास किए। आराधना करने का स्थान में परमेश्वर अपना नाम को रखता है। वो पिता परमेश्वर अपने नाम को कहां प्रकट किया, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रकट किया। हालेलुया। आज आप और मैं आराधना करने का एक नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। प्रभु यीशु का नाम सबसे महान, सबसे ऊंचा नाम,
उस नाम के आधीन में जब हम आते हैं, हमारे चारों ओर घेरा हुआ सारा अंधकार हमसे दूर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो नाम प्रकाशन है। वो नाम क्या है? प्रकाशन है। नबी कहता है कि ये दोनों भी स्पिरिट अब यंग टाइम तक क्या कर रहा है? साथ में ही आ रहा है। एक कैन का आत्मा चला गया यूदास के अंदर, और आबेल को जो चलाया वो आत्मा चला गया प्रभु यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। आमीन। एक पकड़वाया, किसको पकड़वाया? उसको उद्धार करने के लिए आया हुआ उस मसीह को ही क्या किया? उसने पकड़वाया। क्योंकि संसार में प्रकट हुआ सारा मानव जाति का उद्धार केवल और केवल एक ही नाम में है, और वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया। उस नाम को हम जब कभी भी ऊंचा उठाते हैं, वहां वो प्रभु मौजूदगी में रहते हैं। वहां वो प्रभु केवल मौजूदगी में रहते हैं, और साथ ही साथ में उसका अद्भुत कामों को भी वो कर कर वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस खुदा ने वादा किया दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग सदैव रहूंगा। देख लेना, उसके बाद में नबी बात करता है कि बालाम और मूसा के बारे में। दोनों भी नबी थे। मूसा जो जैसा जैसा किया वैसे ही सेम कॉपी किया। कौन? बालाम भी। मूसा ने 7 वेदी बनाई, तो बालाम भी कितना वेदी बनाया? 7 वेदी बनाया। और बालाम के जरिए परमेश्वर का आगमन के बारे में, पहला वहां परमेश्वर के आगमन के बारे में वो बात करता है। एक तारा उदय हो रहा है। बालाम, मूसा की भविष्यवाणी किया, मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को तुम्हारे भाइयों के बीच में क्या करेगा? एक को खड़ा करेगा। जो कोई उसका सुनेगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और जो कोई नहीं सुनेगा वो क्या हो जाएगा? अपने लोगों में से वो काटा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब बालाक राजा के सामने उन इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए बालाम खड़ा हो गया, उधर वेदी के ऊपर वेदी बनती जा रही है, 7 वेदी बलिदान चढ़ाया गया, और जब जब वो वहां उनको श्राप देने के लिए लगता है, प्रभु ने ऑलरेडी उसको बोल के भेजा, मैं तेरे मुंह पर जो शब्द को डालूंगा उसके अलावा तो दूसरा कुछ बोलेगा नहीं। हालेलुया। मैं जो शब्द को तेरे अंदर डालूंगा उसके अलावा दूसरा कोई शब्द को तू क्या नहीं करेगा? नहीं बोलेगा। प्रभु आपको आशीष किया है, तो आपको श्राप देने वाला इस दुनिया में कौन है ब्रदर? कौन है सिस्टर? कोई नहीं आपको श्राप नहीं दे सकता। अगर वो श्राप देगा भी, वो श्राप आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप और मैं जिस नाम के अधीन में है वो नाम दोधारी तलवार है। वस्त्र से लवलीन हुआ व्यक्ति खड़ा है और उसका नाम वचन है करके कहता है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 13वां वचन को पढ़ना। இரத்தத்தால் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார். அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது. जी। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, लहू छिड़का हुआ वस्त्र को पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। और इस परमेश्वर का वचन के बारे में पौलुस इब्रानियों के पुस्तक में लिखने के टाइम पर लिखता है, ये दोधारी तलवार है। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और वो वचन दोधारी तलवार है। और वो तलवार कौन है? वही प्रभु यीशु मसीह है। उसको विश्वास करने वाले बच्चों के लिए वो जीवन का रोटी है।
शैतान के लिए वो दोधारी तलवार है। हालेलुया। आपके पास दोनों भी चीज को प्रभु ने दिया है, जीवन का रोटी को भी दिया और दोधारी तलवार को भी दिया। आप प्रभु वो आएगा तो उसे मारने के लिए आपने दोधारी तलवार को दिए, मैं सुरक्षित रहने के लिए, मेरे बचाव के लिए और क्या दिए? बोलता है डाल भी मैं हूं। तमिल में कहता है केड़ई हूं। हालेलुया। डाल भी कौन है? मैं हूं। हमारे चारों ओर संरक्षण करने वाला एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहां बालाम बहुत कोशिश किया उनको श्राप कर देने के लिए, लेकिन एक भी बार उनको श्राप दे नहीं सका। हर बार उनको क्या करते गया? आशीष ही आशीष करते गया। राजा गुस्से में आ गया, भाई मैं उनको श्रापित करने के लिए तुझे बुलाया, तू तो उनको क्या करते जा रहा है? आशीष ही करते जा रहा है। बालाम बोलता, मैं तो पहले ही बोला प्रभु जो शब्द को मेरे मुंह पर डालेगा उसके अलावा मैं दूसरा कोई चीज को क्या नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा। इज़राइल को आशीष करना ही किसका है? इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। जो देव से इज़राइली नहीं है, हम भी इज़राइली है, हम भी यहूदी है। किस रीति का इज़राइली, किस रीति का यहूदी? अब आत्मिक प्रकार का यहूदी है, अब आत्मिक प्रकार का कौन है? इज़राइली है। हालेलुया। जैसा उनका शरीर में कितना हुआ, आज हमारे भी कितना हुआ है, हमारे हृदय में कितना हुआ है। हालेलुया। कैसे कितना हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा कितना हुआ। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के द्वारा कितना होने के वजह से आज हम परमेश्वर के आधीन और स्वाधीन में बैठे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ नबी कहता है कि दोनों का भी वेदी सेम दिखा, दोनों भी वहां मेमना को बराबर क्या किया? गिनती के हिसाब से पूरा किए थे। 7 मेमना सब एक जैसा ही दिखा, दोनों का वेदी भी क्या किया? एक जैसा ही दिखा, सब कुछ एक जैसा ही दिखा। लेकिन नबी कहता है जिसका बातों को प्रभु दृढ़ किया उसको देखो, और वो क्या है? उसका वचन, उसका वचन ही क्या है? बेस है हमारे लिए। उसका वचन ही क्या है? हमारे लिए नेव है। और परमेश्वर का प्रगटीकरण ही क्या है? कार्य है। हालेलुया। तो आज आप और मैं जिस खुदा को आराधना करते हैं, हम लोग प्रगटीकरण के साथ में क्या करते हैं? विश्वास के द्वारा उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आज हमें देखकर प्रभु ये नहीं कह सकता ये लोग व्यर्थ में क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। नहीं, हमें प्रभु ने चुनकर ही लिया उसकी आराधना करने के लिए। हमें प्रभु चुनकर लिया उसकी महिमा करने के लिए। हमें परमेश्वर चुनकर लिया उसके नाम की महिमा के लिए, गवाह बनकर खड़ा होने के लिए। आप परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसके लिए संस्था की रीति रिवाज हमें चाहिए नहीं है। हमें सत्य परमेश्वर की वचन की जरूरत है। नबी कहता है ये दुल्हन का युग है। किसका युग है? ये दुल्हन का युग है। नबी कहता है वंस अगेन पेंटेकोस्ट, वापस उस पेंटेकोस्ट के दिनों में जो बेदारी उतर कर आई, सेम बेदारी दुल्हन के बीच में भी दिखने में आएगा। हम सब के सब नम्र और लीन होकर प्रभु से कहे, प्रभु हम लोग कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ है। हालेलुया। आपकी मर्जी हमारे जीवन में क्या होने दे? पूर्ण होने दे, और आप बढ़े और हम लोग क्या हो जाए? घटे। इस रीति से यदि हम प्रभु के सम्मुख में आगे बढ़ेंगे तो वो खुदा जब भी आएगा वह हमें पक्का लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी आराधना, हमारी उपासना क्या है? व्यर्थ में नहीं है। हम परमेश्वर को जानकर समझकर उसकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आइए अब सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे हम लोग परमेश्वर के लिए
दान देंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपना कलीसिया का जो समय है सुबह 10 से 12 बजे तक है। आप लोग 10 बजे आ जाइएगा। हम लोग 10 बजे शार्प स्टार्ट करके हम लोग 12 बजे के अंदर 12 बजे यहाँ से निकल कर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए हम लोग गीत गाकर प्रभु के लिए दान देंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से छोड़ों से जंजीरों जख्मों से दूर हुआ, छोड़ों से जंजीरों जख्मों से दूर हुआ, चोली की राहों पर दम से निकाले हुआ, चोली की राहों पर दम से निकाले हुआ, ईमान शिफा पाते हैं, ईमान शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से दूर बिना तुमको यीशु ने माफ किया, दूर बिना तुमको यीशु ने माफ किया, दूर की छाया से रातों को साफ किया, सोने की धारा से रातों को साफ किया, अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
ये हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे Hallelujah. और प्रभु को धन्यवाद Praise God. सब लोग स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु महान है, वो कल और आज युगान एक सा परमेश्वर है। प्रभु ने आज की आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे साथ में रहकर हमसे वो बातें किए हैं। हमारी स्तुति धन्यवाद को प्रभु ने कबूल किया और उसके वचन के जरिए हमसे बोला बातें किया करके हम लोग विश्वास के साथ सब लोग तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हृदय की गहराई से आप बात कर सकते हैं। ये प्रभु का भवन है, प्रभु के भवन में हमें उसने लेकर आया। आप अपने हृदय की बातों को उसके पास बता सकते हैं, बात कीजिए। आपका जो भी समस्या होगा, जो भी दिक्कत होगी, प्रभु यीशु मेरा ये परेशानी है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे चंगाई चाहिए, जो कुछ भी होगा आपका, ये सारी बातों के लिए आप प्रभु से बातें कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम लोगों को अपने सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद। हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद। तेरे आराधना में प्रभु जी हम लोग सहभागिता में आने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसके लिए धन्यवाद। तेरे अपरम प्यार के लिए धन्यवाद, तेरे अपरम दया के लिए धन्यवाद, तेरे अपरम पार उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे ऊपर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु, इस मंडली के ऊपर दया कर प्रभु जी, इस मंडली के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु। आप ही प्रधान चरवा है राजा, हम सब लोग आपके बेटे हैं प्रभु जी। आप हमें अपने नियंत्रण में लेकर आपका मर्जी को हम लोग पूरा करने वाले बने प्रभु। सहायता कर मेरे प्रभु, सहायता कर मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को तेरे आधीन और स्वाधीन करता हूं। हर एक के हृदय को तू छू ले, हर एक के हृदय को तू स्पर्श कर परमेश्वर। तेरे अग्नि से भर दे मेरे प्रभु, तेरी सामर्थ से भर दे। स्थान पर तेरे नाम की महिमा हो। आपके बच्चे लोग आपसे लेकर आपके लिए जो दान और दशमांश रखे प्रभु, इसके प्रीति जितने भी आप आशीषों को रखे हैं, वो सारी आशीष भरकर आपके बच्चों को मिले। आने के समय में आप सुखरूपी से लेकर आए, आप जाने के समय में भी सुखरूपी से ले जाइए। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को दे। जो व्यक्ति जो परमेश्वर विनती के साथ में आए रहेंगे, उनका सब विनती को पूरा करना, आशीष का रखना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। फिर से एक बार बहन मोनिका रॉड्रिक्स को हम लोग याद करते प्रभु। उस बहन को आपने चंगा किया करके हम लोग विश्वास करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर आपके नाम से प्रार्थना कर देते हैं, नबी कहता है उसी समय में प्रभु वहां चंगाई का काम को शुरुआत कर देते हैं। हाँ परमेश्वर, आप चंगा किए, इसके लिए धन्यवाद। उस परिवार की हर जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। आकाश के झरनों को खोलना प्रभु जी। हमारी सहायता कहां से आती है? आप प्रभु ऊपर से। प्रभु सहायता कर, मदद कर, हम सबको तेरे आधीन और स्वाधीन कर, आशीष कर रखवाई। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। Amen, Jesus.
हिंदी Amen Jesus. Amen Jesus. Hallelujah Jesus. आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनकी आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे आमीन। कलीसिया कहे आमीन। सबको जय मसीह की। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब
है।